हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी, एमएससी पीएचडी इन बायोलॉजी। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले वो है, हम टेस्ट लेने वाले आज एक बेसिकली जो कि यूनिट नंबर 1 डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम में से चैप्टर टेस्ट नंबर 6 होगी, क्योंकि फर्स्ट टू 5 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। सो टेस्ट नंबर 6, इसमें 20 एमसीक्यू जो मैं आपको वन बाय वन समझाऊंगा। सेक्शुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज, so actually sexual system of classification is based on artificial system. It is also based on the stamen character. Stamen is the male reproductive organ of a flowering plant. So sexual system of classification is based on artificial system, also based on stamen character. So answer is D, both 1 and 2. Yes. Second, filamentous unbranched thallus is found in, filamentous unbranched thallus is found in, so it is generally found in the Spirogyra, Chlamydomonas, Cladophora, Volvox, Spirogyra. So yes, answer is Spirogyra, D. Question number 3, basis of dendrogram. So dendrogram is based on, this is based on phonetic character, means external character, taximetrices and numerical taxonomy. तो ये सभी के सभी कैरेक्टर आते हैं डेंड्रोग्राम में. सो डेंड्रोग्राम आई वुड से आंसर इज डी. यस. Gametophytic plant body is non-vascular in. Gametophytic plant body is non-vascular in. So actually non-vascular gametophytic plant bodies, it will be algae and liverworts. Yes. Mosses and fern. Yes, both answer are actually there. Gymnosperm and angiosperm is also there. So I would say answer is D. Yes. Question number 5, algae, bryophytes and pteridophyte resemblance with each other in one of the following nature. Actually all are cryptogams. Yes, and all are actually requiring water for fertilization. So main body is gametophytic. No, सबकी gametophytic नहीं होती है. डिपेंडेंस ऑन वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, ये सही है, फिर भी हम आगे पढ़ लेते हैं. एब्सेंस ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, नहीं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन तो सभी में होती है. प्रेजेंस ऑफ एम्ब्रियो, सभी में एम्ब्रियो नहीं होते हैं. डिपेंड ऑन वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन विल बी द मोस्ट एक्यूरेट आंसर. यस. लेमिनेरिया बिलोंग्स टू द क्लास. सो लेमिनेरिया, व्हाट इज लेमिनेरिया? Just like laminarin is also the food material of, means reserve food material of brown algae. So brown algae are Phaeophyceae. So I would say Phaeophyceae will be correct answer. Yes. Which of the following is homosporous? Which of the following is homosporous? So here homosporous will be all pteridophytes, bryophytes and gymnosperm, angiosperm, all bryophytes. Actually homosporous concept, all homosporous concept is related to bryophytes. all bryophytes, तो जितने bryophytes होते हैं, liverworts, mosses, वो सब homosporous होते हैं. तो which of the following is homosporous? So I will say all bryophytes are homosporous. homosporous मतलब जिनके अंदर सेम gametes होते हैं, मतलब एक ही organ पे दोनों gametes होते हैं, मेल फीमेल. सो आंसर सही. नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ zoospore is the features of, zoospore is the features of Chlamydomonas, Porphyra, Brachydiospermum, Spirogyra. Presence of zoospore, no? So here zoospore, I am in confusion between Chlamydomonas and Spirogyra. Presence of zoospore. Zoospore is a fungal, is a algal spore, but Porphyra, Bacteriochin. Here I am actually in confusion between A and D. A. Chlamydomonas,
So let's see A. Yes, A is the correct answer. Chlamydomonas. Okay, next question. What is the chromosome number in rhizoid, egg cells, capsules and protonema if leaf cell of a bryophyte contain 10 क्रोमोसोम? अगर ब्रायोफाइट्स के लीफ में 10 क्रोमोसोम है तो राइजोइड, एग सेल, कैप्सूल और प्रोटोनेमा में रिस्पेक्टिवली गैमेट्स कितने होंगे? तो इनके अंदर रिस्पेक्टिवली गैमेट्स, राइजोइड्स के अंदर तो 10 गैमेट्स हो सकते हैं, मतलब 10 क्रोमोसोम हो सकते हैं, और एग सेल के अंदर भी 10 ही क्रोमोसोम होंगे। प्रोटोनेमा के अंदर भी 10 क्रोमोसोम होते हैं। हाँ, कैप्सूल जो होते हैं वो डबल होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, तो उनके अंदर 20 क्रोमोसोम हो सकते हैं। तो रिस्पेक्टिवली क्या होगा? राइजोइड 10, एग सेल 10, कैप्सूल 20 एंड प्रोटोनेमा 10। तो 10 10 20 10 ये ए वाले में है। यस, सिर्फ ए वाले में ना? हाँ, ए वाले में। ए इज द करेक्ट आंसर। यस। क्वेश्चन नंबर 10. Algae with a starch as a reserve food material is characterized by. So actually there are 3 type of algae: green algae, brown algae and red algae. So green algae में जो reserve food material होता है वो होता है starch. ब्राउन एल्गी जो होती है उनके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल होता है लेमिनेरिन एंड मैनिटोल, और रेड एल्गी में जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो होता है फ्लोरिडिन स्टार्च। तो हमें पूछा गया अल्गी विथ अ स्टार्च एंड रिजर्व फूड मटेरियल इज ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय, तो यहाँ पे ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, बी, सल्फेटेड फाइकोलिपिड्स, नॉन सल्फेटेड फाइकोलिपिड्स एंड नॉन फ्लैजेलेटेड नेचर। तो इसका आंसर हो जाएगा algae with a starch as a reserve food material is also characterized by इसका आंसर प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, बी। ये हो सकता है बिकॉज हम ग्रीन एल्गी के बारे में बात कर रहे हैं, अल्गी विथ स्टार्च एज अ रिजर्व फूड मटेरियल, तो ग्री हो जाए। यस, ग्रीन एल्गी में रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च है और उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट ए बी भी होते हैं, तो ये बी वाला है सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11. प्रेजेंस ऑफ नॉन जेकेटेड गैमेटेंजिया इज द फीचर्स ऑफ। सो नॉन जेकेटेड फीचर्स ये ना बेसिकली एल्गी में पाया जाता है, नॉन जेकेटेड गैमेटेंजिया। यस। क्वेश्चन नंबर 12. जेमी आर। तो जेमी एक प्रकार के बर्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे चारों के चारों बर्ड ही दिए हुए हैं, तो जेमी किसके अंदर बर्ड्स आते हैं वो हमें देखना है। ठीक है, तो ग्रीन एंड मल्टी सेल्यूलर बर्ड, नॉन ग्रीन एंड यूनिसेल्यूलर बर्ड, नहीं ग्रीन तो होते ही हैं, ग्रीन एंड यूनिसेल्यूलर बर्ड एंड ग्रीन एंड मल्टी। अब क्वेश्चन ऑप्शन आ जाता है ए और सी में, ग्रीन तो है लेकिन यूनिसेल्यूलर मल्टी, तो बर्ड्स जो होते हैं ना वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं और उनमें से नया प्लांट बनता है, और ये जनरली हमें सेंटेंस में भी दिया होता है कि दिस प्लांट प्रोड्यूसेस अ जेमी लाइक ऑर्गन विच इज़ अ बर्ड, दिस प्लांट प्रोड्यूस बर्ड लाइक ऑर्गन लाइक अ जेमी एंड दिस जेमी turn into the new sporophyte or turn into new plant body. So A is answer. Green and multicellular birds. Yes. Question number 9. Seedless tracheophytes are. So basically जो seedless tracheophytes होते हैं, seedless bryophytes, pteridophyte, gymnosperm, angiosperm. So I would say pteridophytes will be the correct answer. I think so. They are seedless tracheophytes. देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है, हमें ऑप्शन है ट्रेचियोफाइट्स। ट्रेचियोफाइट्स का मतलब क्या होता है? वॉस्कुलर प्लांट। तो वॉस्कुलर प्लांट कितने होते हैं? एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट। ठीक है, मतलब ब्रायोफाइट तो निकल गया खुद ब खुद। तो टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म ये तीनों सीड वाले प्लांट है, तो हम इनको कहते हैं ट्रेचियोफाइट्स। लेकिन ये कहते हैं सीडलेस ट्रेचियोफाइट, मतलब एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म ये वॉस्कुलर प्लांट भी है और प्लस इनके अंदर सीड भी है। लेकिन टेरिडोफाइट ऐसा एक ऑर्गेनिज्म है, ऐसे प्लांट है जिनके अंदर सीड नहीं है लेकिन वो वॉस्कुलर प्लांट है। सो सीडलेस ट्रेचियोफाइट्स आर टेरिडोफाइट।
यस, बैटरी कम रह गई है, जल्दी कंप्लीट करता हूँ। फ्लोरिडिन स्टार्च इज़ अ रिजर्व फूड मटेरियल। तो मैंने अभी आपको कहा ग्रीन एल्गी में स्टार्च होता है, ब्राउन एल्गी में ब्राउन एल्गी में जनरली होता है मैनिटोल एंड लैमिनेरिन, और रेड एल्गी में रोडोफाइसी में होता है फ्लोरिडिन स्टार्च। अभी ये तो आंसर क्लियर हो गया कि रेड एल्गी है, लेकिन अब हमें ये देखना है कि इसमें से रेड एल्गी कौन है। ठीक है, फ्यूकस तो बेसिकली ब्राउन एल्गी होती है, चारा ग्रीन एल्गी होती है। इसका आंसर है ना पोर्फिरा हो जाएगा, बिकॉज पोर्फिरा इज अ रेड एल्गी, एनसीईआरटी में क्लियरली दिया हुआ है। यस, क्वेश्चन नंबर 15, अल्जीन इज अ फाइकोलिपिड्स ऑब्टेन फ्रॉम द वॉल ऑफ। अल्जीन इज द फाइकोलिपिड्स ऑब्टेन फ्रॉम द वॉल ऑफ। सो पॉलीसोफियोना एंड पोर्फिरा, जिलेडियम एंड लेमिनेरिया, माइक्रोसिस्टिस एंड वॉल्वॉक्स, फ्यूकस एंड डिक्टियोटा। तो फ्यूकस एंड डिक्टियोटा ये सही आंसर हो जाएगा, बिकॉज इनके अंदर अल्जिन पिगमेंट होता है फाइकोलिपिड्स में। तो फ्यूकस एंड डिक्टियोटा विल बी करेक्ट आंसर। यस, क्वेश्चन नंबर 16, पीट मॉस इज, ये तो काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है, स्पैग्नम इज द करेक्ट आंसर। ये जनरली पीट मॉस वो होते हैं, ऐसे प्लांट होते हैं स्पैग्नम, जिनको अगर आपको फ्लावर को एक सिटी में से दूसरी सिटी में ट्रैवल करना है, जैसे हमें पता है कि शिरडी में रोज़ फ्लावर की काफ़ी बड़ी खेतें होती हैं, और वहाँ से रोज़ फ्लावर पूरे काफ़ी जगह पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो वो पीट मॉस में मतलब स्पैग्नम प्लांट के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। ब्राउन एल्गी आर क्वाइट कॉमन इन, तो ब्राउन एल्गी जनरली सी वाटर में पाई जाती है, इसके लिए उनको हम कहते हैं जनरली, एग्जांपल है ब्राउन एल्गी का सोर्गेसम। तो सोर्गेसम सी को सी क्यों कहा जाता है, क्योंकि नीचे सोर्गेसम एल्गी होती है, तो सी वाटर विल बी करेक्ट आंसर। यस, द सीक्वेंसिंग ऑफ डीएनए, केमिकल नेचर ऑफ प्रोटीन हैव बीन यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बाय साइटोटैक्सोनॉमी, कैरियोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी। सो डीएनए सीक्वेंसिंग बेस्ड ऑन केमिकल नेचर ऑफ प्रोटीन, तो इसका आंसर हो जाएगा कीमोटेक्सोनोमिस्ट, बिकॉज केमिकल नेचर से हमें क्लासिफिकेशन करना है। टेक्सोनोमिस्ट कौन होते हैं, जो क्लासिफिकेशन की स्टडी करते हैं, हम उनको टेक्सोनोमिस्ट कहते हैं। सो सी विल बी करेक्ट आंसर, कीमोटेक्सोनोमिस्ट। समझ गया? द सीक्वेंस ऑफ डीएनए एंड केमिकल नेचर ऑफ प्रोटीन हैव बीन यूज एज अ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, मीन्स दे आर यूजफुल फॉर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल नेचर। क्वेश्चन नंबर 19, विच ग्रुप ऑफ plantae represent gametophytic plant, both depend on sporophyte. Which group of plantae represent gametophytic plant body with dependent sporophyte? तो dependent sporophyte liverworts and mosses में होते हैं, because liverworts and mosses both are type of ब्रायोफाइट। यहाँ पे देखिए ए में ऑप्शन दिया हुआ है अल्गी एंड ब्रायोफाइट्स, तो अल्गी तो नहीं आएगा। बी में ऑप्शन दिया है ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट, तो टेरिडोफाइट्स भी नहीं आएगा। और डी में फर्न एंड साइकेट्स हैं। हमें आंसर सी सिलेक्ट करना है, लिवरवर्ट्स एंड मोसेस। यस, लास्ट क्वेश्चन, algae are largely found in habitats, so most probably algae are aquatic, but some algae are also terrestrial, but maximum algae are aquatic. So guys, this is the scorecard result of our test. We have attempted 20 out of 20 question and we have given 20 out of 20 correct answer and none answer we have given wrong. We took around 13 minutes and 16 seconds to complete the test. Okay, actually I was explaining you, therefore I took this much time, otherwise I could have completed in a 5 to 6 minutes also. So thank you so much guys for watching this video. If you truly like this video and understood how to solve MCQ questions based on the test, based on the content of the chapter, then please subscribe to our channel and press the bell icon, and also share with your biology friends, those who are interested for NEET and MS CET like examination. Have a good day.